In this session, we will start our discussion on states of transaction, and you can see that there are 5 states of transactions, and these are active, partial committed, failed, committed, and aborted. Now, in order to understand this concept, let us dig deep into uh, what are the internal operations performed during execution of a transaction. So मैं अभी एक example लूँगा and try to explain you all internal operations, because this is very important to understand that what are internal operation performed during a transaction. Then only we can understand the states of transaction. So let us consider a situation. Here I have a transaction T1 where I want to transfer 1000 rupees from account A to account B. So I want to transfer 1000 rupees from account A to account B. Now, during this, what are internal operation performed and how this operation is actually performed, we are going to understand that. And this is very, very important concept, and every student should be familiar with that in order to understand the concept of recovery, concurrency, and transaction. So first of all, it is important to understand that if I want to make this operation, so ultimately I want to subtract 1000 from A and want to add 1000 into B. Now, in order to perform this operation, A and B are data items, and you know that these items are stored in the hard disk. So let's draw hard disk here, and in this hard disk, somewhere I will have A and somewhere I will have B. Let's suppose initial amount of A is 5000 and initial value of B is 3000. So I'm taking the case that A has a balance of 5000 and B has a balance of 3000, and these are the two items which are placed in my hard disk. So this is my hard disk. Now you know that all addition and subtraction will be performed in RAM. So let's draw RAM here. So this is my RAM where actual operation is performed. Now, in order to perform 1000, in order to subtract 1000 from A, first of all, this A should be moved from hard disk to RAM. So I should move A from hard disk to RAM. Now, when we move the data from hard disk to RAM, it is not the individual item which is moved. It is the whole block will be moved. तो जब आप डेटा को हार्ड डिस्क से रैम में मूव करते हैं तो सिर्फ ए नहीं आएगा, ए जिस ब्लॉक में प्रेजेंट है वो पूरे का पूरा ब्लॉक मूव करता है. सो लेट्स सपोज ए इज प्रेजेंट इन ब्लॉक एक्स, मतलब ब्लॉक इज ए लार्जर एरिया जिसमें काफी सारी आइटम्स हैं और ए जो है इस एक्स ब्लॉक में अवेलेबल है. तो एक ऑपरेशन होता है इनपुट, और इस इनपुट ऑपरेशन के थ्रू ये पूरे का पूरा एक्स ब्लॉक जो है ये हार्ड डिस्क से रैम में आएगा, और आपके पास रैम में ए जो है इनिशियल वैल्यू 5000 वो रैम में आ जाएगी, और इसके लिए जो ऑपरेशन होगा इनपुट एक्स. तो थ्रू इनपुट एक्स जो है वो पूरे का पूरा ब्लॉक जिसमें ए अवेलेबल है वो हार्ड डिस्क से रैम में मूव करेगा. यू कैन सी दैट कि ए की वैल्यू 5000 है, ये 5000 एक्स ब्लॉक में है, और इनपुट एक्स के साथ आप ये पूरे का पूरा ब्लॉक हार्ड डिस्क से रैम में मूव कर रहे हैं, और अब आपके पास रैम में ए 5000 एक वैल्यू अवेलेबल है. अब मुझे इसमें से 1000 ट्रांसफर करना है या 1000 सब्ट्रैक्ट करना है, तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन इसके ऊपर नहीं होती, एक लोकल वेरिएबल क्रिएट होता है, और इस लोकल वेरिएबल में जो 5000 है इसकी जो कॉपी है वो क्रिएट की जाती है. तो ये प्रोसेस जिसमें मैं इसकी कॉपी क्रिएट करता हूं, इस प्रोसेस को कहते हैं रीड, और इस रीड प्रोसेस में ए वेरिएबल की एक लोकल वेरिएबल में कॉपी क्रिएट कर दी जाती है. तो ए जो है एक लोकल वेरिएबल ए में कॉपी हो रहा है, और अब आपके पास लोकल वेरिएबल में 5000 आ चुका है. तो मैं साथ साथ लिखता रहता हूँ क्या ऑपरेशन किया. तो सबसे पहले हमने इनपुट एक्स किया है जिससे डेटा रैम में आया, यहाँ पे लिखते हैं. फिर हमने रीड ऑपरेशन किया है जिससे हमने इस ए की जो कॉपी है वो लोकल वेरिएबल में डाली. अब जितने भी ऑपरेशन होंगे वो इस लोकल वेरिएबल के ऊपर होंगे. तो a इज इक्वल टू a माइनस 1000, तो इसके ऊपर आप चेंजेस करोगे और ये माइनस होके 4000 हो जाएगा. इसके बाद
आप ये जो चेंजेस हैं ए के लोकल वेरिएबल में, उसको मेन वेरिएबल में कॉपी कर दोगे। तो अब इस लोकल वेरिएबल के चेंजेस मेन वेरिएबल में किए जाते हैं जब, तो इस ऑपरेशन को बोलते हैं राइट ऑपरेशन, और इसको भी हम a, लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे लोकल वेरिएबल के कंटेंट मेन वेरिएबल में कॉपी होते हैं। तो आफ्टर मेकिंग दिस चेंज वी विल राइट a, और अब इस a के कंटेंट इसमें कॉपी हो रहे हैं। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये जो चेंजेस है ये रैम में किए। राइट करने के बाद भी जो आपका डेटा है वो यहाँ से 4000, ये अब a जो है ये 5000 से 4000 चेंज हो जाएगा। अब राइट करने के बाद भी जो आपका डेटा है जो चेंज हुआ है, ये हार्ड डिस्क में चेंज हुआ है या रैम में चेंज हुआ है? कैन एनीवन टेल मी? सर रैम में। रैम में। तो ये डाटा रैम में चेंज हुआ है, और अगर इसी समय पावर फेल हो जाए तो आपको इसके कंटेंट नहीं मिलेंगे। ये डेटा हार्ड डिस्क में कब जाएगा? जब आप आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो जब आप एक आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, आउटपुट x, तो इसका मतलब है कि ये जो डेटा है ये रैम से हार्ड डिस्क में मूव करता है। बट प्रॉब्लम ये है कि जो आउटपुट ऑपरेशन है और जो इनपुट ऑपरेशन है, इसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। इनपुट और आउटपुट का जो कंट्रोल है, इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन का जो कंट्रोल है, ये है ऑपरेटिंग सिस्टम के हाथ में। और ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा कि इनपुट और आउटपुट कब करना है। जब रैम में कोई स्पेस नहीं बचता तो हम आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं टू मेक स्पेस ऑफ न्यू ब्लॉक। लेकिन अगर रैम में स्पेस अवेलेबल है तो विदाउट मेकिंग आउटपुट ऑपरेशन यू कैन कंटिन्यू ऑन दैट। सो लेट्स सपोज अब इसके लिए, अब ए में तो चेंज कर लिया, मुझे बी में 1000 ऐड करना है। तो बी में 1000 ऐड करने के लिए मैं इस रैम को और एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो इस बी में 1000 ऐड करने के लिए मुझे 3 में 1000 ऐड करने के लिए कौन सा फर्स्ट ऑपरेशन करना चाहिए? बी में ऐड करना है तो कैसे होगा बताओगे? अब तो पहले चेक करेंगे कि बी किस ब्लॉक में है। सो लेट्स सपोज बी जो है वो वाई ब्लॉक में है। तो ये बी का पूरा ब्लॉक जो है ये आप कहाँ से हार्ड डिस्क से रैम में लेके आओगे, और इसके लिए क्या ऑपरेशन करोगे? इनपुट वाई। तो अब आप जो ऑपरेशन करोगे वो करोगे इनपुट वाई। अब ध्यान से सुनना, अगर तो रैम में स्पेस इसके लिए नहीं हुआ, अगर रैम में इसके लिए कोई स्पेस नहीं हुआ, तो इसका स्पेस बनाने के लिए मैं इस ब्लॉक को, जो पिछले वाला ब्लॉक था जो रैम में पड़ा हुआ था, इसको रैम से हार्ड डिस्क में भेजूंगा थ्रू आउटपुट ऑपरेशन। लेकिन अगर स्पेस हुआ तो फिर आउटपुट करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि रैम कैन अकोमोडेट 2 ब्लॉक एट द सेम टाइम। सो इफ रैम कैन अकोमोडेट 2 ब्लॉक एट द सेम टाइम, तो यू कैन सिंपली परफॉर्म इनपुट ऑपरेशन, और ये ऑपरेशन, ये डेटा भी आपके पास रैम में आ जाएगा। इसके बाद बी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, विच इज लेट्स सपोज 3000। अब आप बी की एक लोकल कॉपी बनाओगे। सो लेट्स सपोज ये मेरी बी की लोकल कॉपी है, और इस लोकल कॉपी को बनाने के लिए आप एक रीड ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। तो इस लोकल वेरिएबल में 3000 आ गया। अब आप इस लोकल वेरिएबल में 1000 ऐड करोगे, तो जो बी है ये हो गया 4000। अगले में आप इसके ऊपर एक राइट ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, जिससे इस लोकल के कंटेंट इस मेन में करोगे। तो ये रीड ऑपरेशन है और ये राइट ऑपरेशन है। तो अब यहाँ पे भी हो जाएगा 4000, और फिर इसके बाद आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म करोगे? आउटपुट ऑपरेशन, जिससे ये हार्ड डिस्क में जाएगा। तो हार्ड डिस्क में डेटा कॉपी करने के लिए आपको आउटपुट x और आउटपुट y करना है। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आउटपुट ऑपरेशन हुआ या नहीं हुआ। तो अगर आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म हो गए हैं, देन वी मेक श्योर दैट कि डेटा हार्ड डिस्क में कॉपी हो चुका है। सो जब आप इस आउटपुट करोगे तो, और ये आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, तो इसमें यहाँ 4000 आ जाएगा और इसमें भी यहाँ 4000 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली इसमें से 1000 डिस्क खत्म हो गया और इसमें 1000 ऐड हो गया। एंड इट ऑल डिपेंड अपॉन द एग्जीक्यूशन ऑफ आउटपुट ऑपरेशन। लेकिन जब तक आउटपुट नहीं हुआ तब तक हमें कोई गारंटी नहीं है कि डेटा हार्ड डिस्क में गया है, बिकॉज तब तक सब कुछ कहाँ पे है? रैम में है। और आउटपुट होगा या नहीं होगा ये किसके ऊपर डिसाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कोशिश करता है आउटपुट ऑपरेशन मिनिमम हो, क्योंकि आउटपुट ऑपरेशन, इनपुट ऑपरेशन टाइम लेते हैं। तो इन ऑर्डर टू हैव
मैक्सिमम ऑपरेशंस, तो हम रैम के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर रैम का साइज छोटा हुआ तो काफी सारे आउटपुट ऑपरेशन किए जाएंगे, बट इफ रैम कैन अकोमोडेट ऑल द ब्लॉक्स एट द सेम टाइम वी ट्राई टू डू सो विदाउट परफॉर्मिंग आउटपुट ऑपरेशन। तो हो सकता है कि आपने सारे काम कर लिए हैं और कोई भी आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ। तो आउटपुट ऑपरेशन कब परफॉर्म होता है? तो डीबीएमएस के पास एक कमांड है, डीबीएमएस के पास एक कमांड है कमिट। जब हम कमिट कहते हैं तो डीबीएमएस ये इंश्योर करती है कि जितना भी डेटा था वो हार्ड डिस्क में सेव हो जाए, वो परमानेंटली सेव हो गया। लेकिन उससे पहले मुझे कोई भी गारंटी नहीं है कि वो डेटा हार्ड डिस्क में सेव हुआ है, क्योंकि उससे पहले सब कुछ हो सकता है किसमें चल रहा हो, रैम में चल रहा हो। तो this is the actual operations when we perform some transfer over my data. So again, I repeat and explain this concept. So let's suppose you want to transfer 1000 from account A to account B. So internally, first of all, the system will check the block in which A is present. So let's suppose it is present in X. So it will perform input X, and this task of course will be performed by operating system. Then after getting it in RAM, we create a local copy, and this task will be performed by DBMS. Then over this we perform 1000 will be performed by DBMS. Then we perform write operation. This task again performed by DBMS. Then output may happen or may not happen. कोई गारंटी नहीं है, may or may not, and this is performed by operating system and it depend upon the size of RAM. So अगर RAM में स्पेस ना हुआ तो आउटपुट होगा, अगर RAM में स्पेस हुआ तो आउटपुट नहीं होगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली RAM में स्पेस होगा तो ये आउटपुट नहीं होने वाला है एक्चुअली। इसके बाद B की बारी आती है, तो आप इसके लिए इनपुट Y करोगे। So then you input Y will be performed and this will be performed by DBMS or operating system? बोलो। Operating system. Then read B comma B की local copy बनेगी, will be performed by DBMS. मुझे पूरा करना है तो फिर क्वेश्चन होगा। B equal to B plus 1000 DBMS. Then write B comma B will be performed by DBMS. अब इसके ऊपर फाइनल करने के लिए मुझे आउटपुट करना होगा जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा, एंड अगेन इट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ रैम। सो अगर स्पेस हुआ तो अभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम ये आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू परफॉर्म आउटपुट ऑपरेशन। सो जब मैं लिस्टिंग करता हूँ ट्रांजैक्शन की, जब मैं ट्रांजैक्शन के ऑपरेशंस लिस्ट करता हूँ तो नॉर्मली वी लिस्ट ओनली DBMS operations. तो DBMS के operations कौन से हैं? These three and these three. तो जब भी आप DBMS की बुक देखेंगे तो नॉर्मली आपको ये 3 और 6 ऑपरेशन इसमें मिलेंगे, और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करेगा। आउटपुट होगा या नहीं होगा मुझे कोई गारंटी नहीं है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिसाइड करता है साइज ऑफ रैम के अकॉर्डिंगली। अगर रैम का साइज कम होता है तो हर ब्लॉक के बाद आपको आउटपुट करना है। दिस इज कॉल्ड एज स्वैप इन एंड स्वैप आउट एंड इट टेक लॉट ऑफ टाइम, सो वी ट्राई टू अवॉइड आउटपुट ऑपरेशन टू मिनिमम। और लेकिन गारंटी के लिए क्या है, मेरे पास एक कमिट कमांड है। सो जब DBMS एक कमिट ऑपरेशन परफॉर्म करती है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आउटपुट पेंडिंग थे वो सारा डेटा जो है वो रैम से उठ के कहाँ चला जाना चाहिए, हार्ड डिस्क में चला जाना चाहिए। Now you can ask me any question. Yes, please. सर आउटपुट के लिए आपने बोला था कि वो मतलब कमिट करते हैं, DBMS कमांड है इसलिए क्या दोबारा बोलो? सर मतलब OS, सर आउटपुट OS का कमांड माना जाएगा या मतलब DBMS का माना जाएगा? आउटपुट जो कमांड है ये OS की इंस्ट्रक्शन है, इनपुट आउटपुट दोनों OS की इंस्ट्रक्शन है। बट DBMS से भी उसको लिंक कर रहे हैं कि कमिट करते हैं, तो हाँ, तो कमिट उस ऑपरेशन को इनिशिएट करता है। तो DBMS की कमांड कमिट है, DBMS के पास कमिट ऑपरेशन है जो इस आउटपुट को इनिशिएट करता है, बट आउटपुट तो ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा, लेकिन इनिशिएट किससे होगा? इस DBMS की कमिट कमांड से होगा।
ओके सर। ओके तो अब जब मैं इन ऑपरेशंस को अब मैं जब ये ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करता हूं और मैं ये जो मनी है वो ट्रांसफर करना चाहता हूं अकाउंट ए टू अकाउंट बी, तो इस ट्रांजैक्शन की क्या क्या स्टेट्स हो सकती हैं। तो अब दोबारा मैं ट्रांजैक्शन T1 है जिसमें मैं ए में 1000 सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूं और बी में 1000 ऐड करना चाहता हूं। तो इसके लिए DBMS के ऑपरेशन अब मैं सिर्फ लिखूंगा तो होगा अब सबसे पहले कि वो रीड करेगा ए को ए में, लोकल वेरिएबल में आएगा, इसमें से 1000 सब्ट्रैक्ट होगा, फिर राइट किया जाएगा इसमें, राइट का मतलब स्टिल रैम में हो रहा है, फिर रीड किया जाएगा बी की कॉपी को, बी में 1000 ऐड किया जाएगा और फिर राइट कर दिया जाएगा। अब जब आप इसमें से किसी भी स्टेट के ऊपर है कुछ भी, मान लो इसमें टोटल 6 ऑपरेशन है, आपने 2 कर लिए या 5 कर लिए या 6 कर लिए, आपने इनमें से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, उस समय जो आपकी स्टेट है वो एक्टिव होगी। तो अब मैं स्टेट्स ऑफ ट्रांजैक्शन एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो स्टेट्स ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब है इसमें से आप किसी भी पोजीशन पे है 1 2 3 4 किसी भी पोजीशन पे है, तब मैं इसको बोलूंगा एक्टिव स्टेट। तो आप एक्टिव स्टेट के ऊपर है। जब आप 6 के 6 काम पूरे कर लोगे, अब ध्यान से सुनना, जब आपने 6 के 6 टास्क पूरे कर लिए, यहां पे हैं आप, तो मैं इस स्टेट को बोलूंगा पार्शियली कमिटेड स्टेट। मतलब कमिट नहीं हुआ लेकिन काम पूरा हो गया, 6 काम करने थे 6 के 6 पूरे कर लिए, तो पार्शियली कमिटेड स्टेट। लेकिन इसके बाद जब आप कमिट भी कर देंगे, इसका मतलब आपने श्योर कर दिया कि वो हार्ड डिस्क में है, तब मैं उसको बोलूंगा committed state. So there is a difference between partially committed and committed state. So here I have discussed 3 states. One is active state जब transaction चल रही है, partially committed मतलब 6 के 6 काम पूरे कर लिया आपने, committed का मतलब है कि पूरे करने के बाद आपने commit भी कर दिया है, और commit का मतलब हुआ कि वो transaction एक तरह से complete हो चुकी है। लेकिन अब मेरा अगला क्वेश्चन है कि अगर यहाँ पे 6 ऑपरेशन किए हैं या आपने 3 ऑपरेशन किए हैं, ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है, तो आप क्या करोगे। अगर ट्रांजैक्शन फेल होती है तो आप 0% पे जाओगे या 100% पे जाओगे। यहाँ पे अगर ट्रांजैक्शन फेल होती है 0 पे, तो 0 पे। अगर 6 पे फेल होती है तो कहाँ जाओगे। सारा काम कर लिया था लेकिन वो भी हार्ड डिस्क 0 में पे, स्टोर नहीं किया था, तो क्या करोगे। 0 पे। स्टिल 0 पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो अगर आप यहाँ पे किसी भी स्टेट के ऊपर फेल करते हो, पार्शियल कमिटेड से पहले कहीं भी फेल होता है अगर आपका सिस्टम, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, अबॉर्ट करना पड़ेगा। अबॉर्ट का मतलब है आपको वो चेंजेस अंडू करने पड़ेंगे और 0% पे लेके आने पड़ेंगे। और कमिटेड का मतलब है कि वो पूरी हो चुकी है, मतलब वो 100% पूरा हो चुका है। सो यहाँ पे मेरा ये पॉइंट है कि जब भी आप सारे ऑपरेशन करते हैं तो बीच में कभी भी आपकी अगर ट्रांजैक्शन फेल होती है तो आप जो है वो अबॉर्टेड स्टेट के ऊपर आएंगे और देन आपको उसको 0 पे लेके आना पड़ेगा। चाहे आपने सारे 6 के 6 काम कर लिए थे, फिर भी आपको अबॉर्ट करना पड़ेगा क्योंकि कमिट नहीं हुआ था वो। तो जब तक डेटा कमिट नहीं हुआ था, इसका मतलब तब तक सब रैम में ही था, और अगर रैम में सब कुछ था और वो फेल हो गया, तो इसका मतलब ये है कि आपको जो है वो अंडू करना पड़ेगा और 0% पे लेके आना पड़ेगा। सो दिस इज द पॉइंट। सो नाउ लेट्स सी, यू कैन नाउ सी दैट कि ये एक एक्टिव स्टेट है। जब सारे काम कर लूंगा मैं, तो मैं एक्टिव से पार्शियल कमिटेड पे आ जाऊंगा। पार्शियल कमिटेड का मतलब है 6 के 6 टास्क पूरे कर लिए। इसके बाद जब आप कमिट लिख देंगे, तब इसका मतलब है वो कमिट हार्ड डिस्क में भेज दिया, तो आप कमिटेड हो गया डेटा, मतलब 100% पूरा हो गया। लेकिन अगर कहीं पे भी इससे पहले वो डेटा फेल होता है, ट्रांजैक्शन फेल होती है, तो आप किस स्टेट के ऊपर आ जाओगे, फील्ड स्टेट में। एक्टिव से भी दिखा रहा हूं क्योंकि आप 1 2 3 4 5 कभी भी फेल पे आ सकते हो, और पूरा काम करने के बाद भी फेल पे आ सकते हो। तो कमिट से पहले अगर कोई एरर आता है तो यू कैन कम एट फेल। सो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अंडू करना पड़ेगा या इसको अबॉर्ट करना पड़ेगा, बोथ आर सेम। और आप इसको अबॉर्टेड स्टेट पे आओगे, और अबॉर्टेड स्टेट का मतलब है 0%। सो नाउ यू कैन सी दैट यू हैव ओनली 2 एंड रिजल्ट, आइदर 0 और 100। तो या तो आप पूरा काम करने के बाद कमिट करके 100% पे चले जाओगे, या पूरा काम करने के बावजूद भी ट्रांजैक्शन फेल हो सकती है और फिर आपको अबॉर्ट करना पड़ेगा, तो आप 0% पे आओगे।
बीच में भी कभी भी अगर फेल होती है तो भी आपको अंडू करना है तो आप फेल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 6 स्टेप है, इन 6 स्टेप से पहले कहीं पे भी अगर फेल होता है तो आप इस एक्टिव स्टेट से फेल्ड स्टेट पे आ जाओगे, और फेल्ड स्टेट पे आने के बाद आपको अबॉर्ट करना पड़ेगा, और फाइनली आप अबॉर्टेड स्टेट के ऊपर जाके खत्म होगे विच इज 0%। लेकिन अगर एरर नहीं आया, आप कमिट कर पाए हैं, तब आप 100% पे जाके कंप्लीट करोगे। So this is very important concept to understand the whole procedure of concurrency and recovery, और यही पूरी बेस बनाएगा। तो एक्टिव से पूरा काम करने के बाद पार्शियल कमिटेड, कमिटेड से कमिट कमांड इशू होने पे आप कमिटेड में चले जाओगे, और अगर बीच में कोई भी एरर आता है तो फेल्ड होने के बाद आप अबॉर्ट करोगे विच इज 0%। सो दिस इज द प्रोसेस, एंड इन दिस थ्रू प्रोसेस वी एबल टू इम्प्लीमेंट ऑल दोज कंसेप्ट्स। सो दिस इज द लॉजिक विच आई वांट टू शेयर विद यू, और इससे हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। और नॉर्मली हम ट्रांजैक्शंस को कंकरेंसी में रन करते हैं, इसको चलो बाद में डिस्कस करते हैं। तो जब हम ट्रांजैक्शन की शेड्यूलिंग की बात करते हैं तो इसमें कुछ इस तरह के ऑपरेशंस मिलेंगे, रीड और राइट। तो ये दो ट्रांजैक्शंस के ऑपरेशन T1 के हैं और ये ऑपरेशन T2 के हैं। इसमें 2 ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है, और ये ट्रांजैक्शन सीरियल में भी हो सकती हैं और नॉन सीरियल भी हो सकती हैं। यहाँ पे आप देखते हो कि पहले T1 का काम हो रहा है, फिर T2 का हो रहा है, तो दिस इज ए सीरियल शेड्यूल। या यहाँ पे T2 पहले हो रहा है, फिर T1 हो रहा है, तो स्टिल दिस इज ए सीरियल शेड्यूल। नॉन सीरियल में क्या होता है, पहले एक का काम किया, फिर दूसरे पे चले गए, फिर दूसरे से इस पे आ गए, फिर इसके ऊपर आ गए। सो दिस इज कॉल्ड एज कंकरेंट और नॉन सीरियल। तो कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन या नॉन सीरियल का मतलब है दोनों ट्रांजैक्शन के काम एक साथ हो रहे हैं, बट एट ए टाइम एक ही काम होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम विल टेक वन ऑपरेशन एट ए टाइम। सो आफ्टर डूइंग सम टास्क ऑफ T1 इट विल डू सम टास्क ऑफ T2। आफ्टर डूइंग सम टास्क ऑफ T1 इट अगेन मेक ए शिफ्ट एंड शिफ्ट टू T1 ट्रांजैक्शन। इसका कुछ काम करने के बाद फिर ये T2 पे शिफ्ट मारेगा। एट ए टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही कर रहा है, बट ये क्या कर रहा है, एक ट्रांजैक्शन को छोड़ के दूसरी पे जा रहा है, दूसरी से फिर पहली पे आ रहा है। इसको मैं बोलता हूँ इंटरलीव। तो इंटरलीव मतलब T1 से T2, T2 से T1, T1 से T2। इस अरेंजमेंट में अगर काम हो रहा है तो मैं इसको पैरेलल बोलता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। इसको मैं नॉन सीरियल बोलता हूँ। और सीरियल का मतलब है कि T1 के काम पूरे पहले एक साथ होंगे और फिर T2 के एक साथ होंगे, तो बीच में आप इंटरलीविंग नहीं कर रहे। तो अगर ऐसी अरेंजमेंट है तो ये सीरियल है। ऐसा भी हो सकता है कि T2 पहले कर लो, T1 बाद में कर लो, still this is serial. So this is serial execution and this is non-serial execution, or it involves some kind of interleaving, and I called this as a parallel execution. So this is important. And ये सारे जो शेड्यूल है, ये सारे डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो इस बात को एड्रेस कर रही है। गॉट द पॉइंट? नाउ अगर एक फाइनल शेड्यूल में मैं अबॉर्ट और कमिट दिखाता हूँ, लास्ट के ऊपर दिखाता हूँ कि वो ट्रांजैक्शन अबॉर्ट हुई है या कंप्लीट हुई, कमिट हुई है, तो उसको मैं कंप्लीट मानता हूँ। जब तक मैं अबॉर्ट और कंप्लीट नहीं दिखाता तब तक वो कंप्लीट नहीं मानी जाती। तो कंप्लीट ट्रांजैक्शन तब होती है जब उसके नीचे लिखा जाता है कमिट। तो जब मैं यहाँ कमिट लिखूंगा तब ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट मानी जाएगी। जब तक कमिट नहीं है लिखा हुआ तब तक ये ट्रांजैक्शन पार्शियल है। तो ऑल दीज आर पार्शियल ट्रांजैक्शंस। तो क्योंकि इसमें कमिट मैंने नहीं लिखा हुआ, तो दीज आर द पॉइंट्स व्हिच गिव यू एन आइडिया दैट कि वो सीरियल है या नॉन सीरियल। तो आज के लिए इतना ही है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन।